Even if we wish to, even if we want to run away from God, you cannot. You cannot. It would be just same situation as if the thread of this napkin wishes to run away from the napkin. The threads have been weaved together to give a shape, and we have this hand towel. Now, if the threads begin to think, well, anyone can think. And if the threads begin to think and they wish to go for a ride or just a walk somewhere, why be always stuck with these other threads? We don't want to be part of this napkin. And they revolt and they say, okay, we are leaving, goodbye, we are going. But can the thread leave the napkin? Yes, we can say in one way, if I pull one of the thread like this and I hold it and I pull it out, see, I'm doing that already. Now this thread is out of the napkin. But the thread is not out of the cotton. Can you take away the cotton from this thread? I can break it into 2 pieces, or 4, or 6, or 8, or 10, or millions. Still, the thread remains indivisible part of cotton. What is cotton? Now, I am going to use this example to explain you the relationship of you, world, and God. World is just like this napkin. Well, world is not a napkin, just like a napkin. And then there are these threads in it. How many threads would be in this one piece? Thousands, not millions, should be thousands. Right? So we can pull away one thread out. I'm really going to mess up this napkin today. So I again pull out one thread out. The napkin still exists, the thread still exists, and the cotton still exists. Cotton is in the thread, cotton is in the napkin. Right? When few threads are weaved together, they are binded together, then there is a cloth. But if we begin to take out one after another, all the threads out, then there won't be any cotton left, the napkin left. And what would be left is threads. And what is in threads? Cotton. So cotton is the base from which the threads have come, from the threads the napkin has come. Right? So we can say everything has come from God. We are just like the thread, and all the threads have been weaved together, and that is samsara. You, your parent, your sister, brother, sibling, cousins, aunts, uncles, or these relatives. Well, in English, we don't have specific name for all the relatives. We have just aunts and we have just uncles. That's it. तो हिंदी पंजाबी में बुआ है, चाची है, मामी है, मासी. अंग्रेजी में कैसे बोलोगे? सब आंट हो जाती है. Right? All these people, all these individuals are just like the threads. And all threads are coming from cotton. If a thread says that I don't want to be part of cotton, there is no way possible that the thread can separate itself from the cotton. But a thread can definitely pull itself out of the networking of this napkin. So we, the individual souls, have these options either to be stuck with this napkin, with this samsara, with other threads, right? Or we move inwards and we recognize who we are, and we know that our real relationship is with. If a thread thinks, then thread would say that my relationship is with cotton.
But if we think the individual self, the individual soul, then we can say that our real relationship is with God. Now, we don't have to strike a relationship. The relationship is already there. We just have to see it. We just have to feel it. We just have to experience it. We just have to explore it. And all spiritual practices are meant to do this only. जब हम दो चीज़ों को आपस में जोड़ते हैं तो उनके टूटने की संभावना है, दो चीज़ों को अगर हम आपस में जोड़ते हैं तो उनके अलग होने की संभावना है। लेकिन अगर चीज़ एक ही हो तो उसमें टूटना और जुड़ना नहीं हो सकता है। परमात्मा और मैं दो अलग अलग वस्तुएं नहीं हैं कि हमको आपस में जोड़ना है, और अगर हम आपस में जोड़ने की कोशिश भी करेंगे तो फिर कभी ना कभी अलग हो जाने की भी संभावना। पर अगर मेरा स्वरूप, मेरा असल निज स्वरूप, अगर हमारी असल पहचान परमात्मा ही है तो उसमें फिर जोड़ना और तोड़ना दोनों बातें लागू नहीं होंगी। जो ये कहते हम भगवान से टूट गए, हम भगवान से दूर हो गए, ये तो ऐसे ही जैसे धागा कहने लगे मैं सूत से दूर हो गया। हो सकता है? नहीं हो सकता है। सोने का जेवर सोने से अलग नहीं हो सकता है। हो सकता है क्या? नॉट पॉसिबल। हमारे एक संत थे यूपी से, तो वो एक दोहा बोलते थे, जेवर ढूंढे सोने को, कपड़ा ढूंढे सूत, जीव ढूंढे ब्रह्म को, तीनों ऊत के ऊत। जेवर ढूंढ रहा है कि सोना कहाँ, सोने से बना है, पर फिर भी ढूंढ रहा है कि सोना कहाँ है। और कपड़ा ढूंढ रहा है, सूत कहाँ है, सूत माने कपास जिससे वो बना है, कपास को ढूंढने निकल पड़ा कपड़ा। ऐसे ही जो जीव है वो ईश्वर को ढूंढने निकल पड़ा, बोले तीनों ही ऊत हैं। फिर बोले जेवर ढूंढे सोने को, कपड़ा ढूंढे सूत, जीव ढूंढे ब्रह्म को, तीनों ऊत के ऊत। तो ऊतों को सही गुरुजी करते। तो जिसकी जिंदगी में गुरु नहीं है वो ऊत ही है। ऊत समझते हो? बिगड़े हुए, बिगड़े हुए, बेअकल, बेसमझ, बदतमीज, बेनियाज, बेरहम। ऊत को सही कौन करता है? ऊत को गुरु ही सही करता है। फरीद की बात सुनाती हूँ। बाबा शेख फरीद जब ऐसा प्रसिद्ध नहीं थे, लोग उन्हें बाबा या शेख की तरह नहीं जानते थे, फरीद नाम से पहचानते थे। एक दिन फरीद कहते हैं अपने घर से जा रहे थे मस्जिद की ओर, तो रास्ते में किसी आदमी से वो टकरा गए। अब वो अपनी मस्ती में चल रहे थे, अंदर ध्यान में थे, तो उनकी नज़र अंदर थी, बाहर थी नहीं, तो थोड़ी सी चूक होनी ही थी, तो सामने वाले से टकरा गए। सामने वाला आदमी बहुत गुस्साया हुआ निकला होगा घर से, रोटी नहीं मिली होगी, नाश्ता नहीं मिला होगा, डांट मिल गई होगी, क्योंकि सब कोई किसी न किसी के द्वारा सताए हुए होते हैं। ये बात तो तय है। समाज में जिस तरह से सब लोग चल रहे हैं उसमें तू मुझे सता, मैं तुझे सताऊंगा। बिजनेस का, कारोबार का, जॉब का कोई गुस्सा, कोई झल्लाहट है, वो पिताजी आके घर में मम्मी पे निकाल देते हैं, मम्मी अपनी झल्लाहट आगे बच्चों पे निकाल देती है, बच्चे आपस में लड़ लड़ के एक दूसरे की चोटियां खींच के, जूते बूटे मार के अपनी उस झल्लाहट को निकाल। तो एक दूसरे को हम गुस्सा ट्रांसफर करते रहते हैं। आपको कभी भी कोई भी ऐसा व्यक्ति मिले जो बहुत गुस्से में है, टीचर हो सकता है, आपका मास्टर कोई हो सकता है, आपके बस का ड्राइवर हो सकता है, आपके घर में काम करने वाला नौकर हो सकता है, या आपके माँ या आपके पिता हो सकते हैं, बड़ा भाई या बड़ी बहन हो सकती, बड़े गुस्से में लाल पीले हो रहे, गाली निकाल रहे हैं।
ऐसी सिचुएशन में आपको अगर ये बात मेरी याद रह गई, ये ज्ञान तुमको याद रह गया कि ये जो सामने वाला इंसान दुखी हो रहा है, क्योंकि जब गुस्सा आता है तो उसको भी तो तकलीफ हो रही है ना, उसको भी तकलीफ हो रही है। अब वो अपनी तकलीफ को जाहिर कर रहा है। तो अगर कोई आदमी का पेट दुख रहा हो तो क्या हमको उस पर गुस्सा करना चाहिए कि उसकी मदद करनी चाहिए, उसको कोई दवाई देनी चाहिए? तो पेट दुख रहा हो तो हम हमेशा सहानुभूति करते हैं, उसको कुछ दवाई का इंतजाम करा के देते हैं। इसी तरह गुस्सा भी दिमाग की, समझो दिमाग का दर्द हो गया, अकल के पेट में दर्द हो रही है। तो ऐसा आदमी जो गुस्से में है, मतलब वो किसी तकलीफ में है, उसकी तकलीफ को देख करके आपको नर्म रहना चाहिए कि आपको भी अपनी एक अंदर तकलीफ नहीं खड़ी कर लो और तकलीफ वाले को और तकलीफ दो। सोच के देखिए कि आपके पाँव में कांटा लगा हो और आपको कोई कहे चलो, मुश्किल हो जाएगी। आपको कहोगे कांटा तो निकाल लेने दो पहले। ऐसे ही अगर किसी के मन में गुस्से का कांटा घुसा हुआ है तो वो तकलीफ में है, तो उसकी मदद कीजिए कि वो अपना कांटा पहले निकाल ले। ऐसे ही कभी कभी जब तुम्हें गुस्सा आ जाता है तो तुम भी तो फिर इस गुस्से के कांटे से अपने आप को पीड़ित करते रहते हो। देखो, जहां आपकी मर्जी पूरी नहीं होगी वहां गुस्सा आएगा ही। मेरी मर्जी ये है, पूरी करो, नहीं पूरी करेगा, मम्मी नहीं सुनती, पापा नहीं सुनते, भाई नहीं सुनता, बहन नहीं सुनती, हाँ, दोस्त नहीं सुनते, गुस्सा आता है। अब इसका इलाज क्या है? आप गुस्से में हैं, जहां जाएंगे उसके ऊपर भी गुस्सा निकालते रहेंगे। जिस पे आप गुस्सा निकालेंगे वो आपके ऊपर गुस्सा निकालेगा, फिर दोनों जने किसी और पे आगे गुस्सा निकालोगे। इट इज नॉट अ गुड थिंग। तुम्हें गुस्सा आ जाए तो तुम क्या करोगे? मार दूंगा, फाड़ दूंगा, तोड़ दूंगा। क्या करोगे तुम्हें गुस्सा आएगा तो? सोचने की बात है। गुस्से में आपको जिसके ऊपर भी गुस्सा आया, पर गुस्सा तो आपके मन में आ रहा है, तकलीफ तो आपको हो रही है ना। असल में जब तुम्हें तकलीफ हो रही होती तो तुम्हें लगता मैं तो तकलीफ में हूं, दूसरा आराम से कैसे रह जाए, अब उसको भी तकलीफ दूंगा। ये बड़ी जालिम बात है। ऐसा जालिम सिंह नहीं बनना चाहिए। आपके मन में अगर गुस्से का कांटा चुभ रहा है तो उसका इलाज कीजिए। उसके इलाज हो सकते दो। सिट बैक एंड थिंक ओवर द होल सिचुएशन and think from the perspective of the other person. If the other person was angry or upset on you, maybe that person is suffering because of some reason. जैसे आपको अच्छा सुनना अच्छा लगता है, ऐसे उसको भी तो अपने लिए अच्छा सुनना अच्छा ही लगता होगा ना। किसी ने उसको जरूर कुछ बुरा कहा है जिससे वो दुखी हुआ है, तो अब वो आगे मुझे दुखी कर रहा है। अब या तो इस दुख की चेन को मैं रोक दूं अक्लमंदी से, और या इस दुख की चेन को मैं आगे बढ़ा दूं। क्या करूं अब मैं? अक्लमंदी यह है कि मैं उस गुस्से की चेन को वहीं तोड़ दूं। आपकी समझदारी की पहचान यही होगी कि आप उस गुस्से को वहीं लगाम दे देते हो। क्या हो गया? बीइंग कूल ऑलवेज वर्क्स। सामने वाला बहुत गुस्से में लाल पीला हो रहा हो और ऐसे समय में अगर आप शांत रहें और उसको मौका दें, भाई उबल ले, खाली हो जाएगा ना, फिर बात करेंगे इससे। गुस्साए हुए इंसान को कुछ समझाने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए, वो और पीट देगा तुम्हें आगे से। गुस्से में आए हुए इंसान को उबलने दो, फड़कने दो, जो करे सो करने दो। जस्ट बी कूल, वेट फॉर द राइट टाइम। कितनी देर गुस्सा खाएगा कोई? मुझे याद है एक बार हमारे मकान के सामने दो औरतें लड़ पड़ी, पड़ोसी आपस में लड़ पड़े।
जो वो बोली, जो वो ऊंचा ऊंचा बोली एक दूसरे को, जो गाली चली, जो गाली चली, 2 घंटे तक ड्रामा चलता रहा। बोल बोल के थक गई। फिर हुआ ये कि उनके घर वालों को भी गुस्सा आ गया, वो उनके पति आ गए, वो भी अब लड़ने शुरू हो गए आपस में। आवाज और ज्यादा बढ़ गई, ड्रामा और बढ़ गया। फिर मोहल्ले वाले सब आ गए, घर से बाहर निकल आए तो उनको समझाने लग गए। वो जो समझाने आया ना, उसने उसको भी गाली दे दी, अब वो उससे लड़ने लग गया। करते करते ये हो गया कि 50 आदमी वहां पे लड़ रहे हैं, 50 आदमी एक दूसरे को गाली दे रहे। चलती रही चलती रही चलती रही। इतने में हमारे पड़ोस के घर में एक माता जी रहती थी, बहुत लंबी ऊंची और ऊंची आवाज, और सब लोग उसकी इज्जत भी बड़ी करते थे। अब जब इतना शोर सुना तो वो उठ के बाहर आई कि हो क्या रहा है, माजरा क्या है। उसने किसी से नहीं पूछा क्या हुआ है, क्यों हुआ है, झगड़ा किसने शुरू किया, उसकी वजह क्या, कुछ नहीं बोली। वो आ करके वहां खड़ी हुई और उस अपनी खड़कती हुई गरजती हुई ऊंची आवाज में बोली, मर जाने हो, चुप करो। अब जब सुना उसको और सामने खड़े देखे तो एक झटका सा सबको लगा, और चूंकि वो उसकी इज्जत करते हैं, बहुत अच्छी तगड़ी महिला और बड़ी जानदार और बहुत रसूख वाली औरत थी, तो सब लोग एकदम से चुप हो गए। अब बोलो क्या हुआ, किसने किया, क्या हुआ, अब बोलो। अब कोई बोले भी नहीं। कोई इधर से खिसक लिया, कोई उधर से खिसक लिया, कोई उधर से खिसक लिया। अकेले में वो फिर आप ही रह गई खड़ी वहां पे, कहती हुआ क्या है, ड्रामा क्या चल रहा था, बोलो तो सही मुझे। क्योंकि बात कुछ थी ही नहीं, और वैसे भी बात कुछ होती भी नहीं। हम लोग अपने ईगो की वजह से, हम लोग अपने अहंकार की वजह से खाम में दुखी हो जाते हैं। और जब हम दुखी होते हैं, फिर हम ऐसे बुरे इंसान हैं ना, फिर हम दूसरे को दुखी किए बगैर रह नहीं सकते।